Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. So, today in this video, we will be covering class 9, chapter number 1, which is Cell, the building block of life. This video will be so interesting. In one shot, we will complete all the topics of this chapter. So, stay tuned till the last. And without wasting time, let's start our class. Let's start this class with a motivational quote, which is there is nothing that comes for free in this world. Everything required hard work. So keep on doing hard work. And today's chapter is Cell, the building block of life. Here you will get full chapter explanation, free notes, and in the simple way. So let's start this. Starting with introduction. This class will be bilingual. I will explain both in Hindi and English. So, starting with the introduction, the first topic is what is cell? Let us know about cell. All living organisms are made up of tiny units called cell. यानी कि क्या है, सारे के सारे जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं, वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स एक बहुत ही बेसिक यूनिट के बने हुए हैं जिसका नाम है सेल. सो a cell is a basic and structural unit of life. यानी कि सेल क्या है, एक बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की. जस्ट लाइक अ ब्रिक बिल्ड अ हाउस, सेल बिल्ड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जिस तरीके से एक घर बनाने के लिए एक एक ईंट की जरूरत होती है, यानी एक ईंट, दो ईंट, लाखों ईंट से क्या है एक पूरा हाउस बिल्ड होता है, उसी प्रकार आपकी बॉडी भी एक एक सेल से बनी हुई है. ओके, सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल while other are made up of millions of cell. यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन सेल के बने होते हैं. इन अ सेंस कि जो ऑर्गेनिज्म वन सेल के बने होंगे या सिंगल सेल के बने होंगे उन्हें बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जबकि जो ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए होंगे उनको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर. तो इस लाइन में हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया सेल का, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की डेफिनेशन. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट point, it is the study of cell help us understand how living organism grow, reproduce and perform different life activities. यानी कि हम सेल की स्टडी क्यों कर रहे हैं? सेल की स्टडी हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर सो क्यूरियस टू नो अबाउट आवर बॉडी, आवर फंक्शन, our structure of body. So it help in growing, reproducing and performing different life activities. Okay, now coming to the discovery of cell. So here is a storyline that how cell was discovered. So starting with Robert Hooke, he was the first who discovered the cell for first time. He made his own microscope and tested a slice of cork under the microscope. तो जब उनने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप पे टेस्ट किया तो उनने देखा कि बहुत स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखे. तो उनने उस स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को नेम दे दिया सेल. यानी कि उनने फर्स्ट टाइम डिस्कवरी करी थी सेल की, बट वो सेल क्या थी? डेड सेल थी. अब उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने ऑब्जर्व करी लिविंग सेल फॉर फर्स्ट टाइम. यानी कि पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले ल्यूनहॉक. आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, एल फॉर ल्यूनहॉक, एल फॉर लिविंग सेल. और रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल टर्म दिया था और उनने एक डेड सेल पे क्या करी थी? डिस्कवरी करी थी. तो ये तो रहा डिस्कवरी ऑफ सेल. नाउ कमिंग टू सेल थ्योरी. So first of all, let us understand who proposed this cell theory and then we will go to the main points of cell theory. So there were two scientists, Slidden and Swan. They proposed cell theory for first time. Then later on, Virchow comes and he added some more points in the cell theory. So what was the cell theory? According to them, the cell theory was ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. यानी कि उनका कहना था कि सारे के सारे जीव क्या हैं? सेल से बने हुए हैं. सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की. और विर्चो ने उसमें एड ऑन किया ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी कि सारी न्यू सेल्स अपनी पहले से एग्जिस्ट करी हुई सेल से बनती हैं. तो ये थे मेन 3 पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी. यू शुड नोट दिस इन योर नोटबुक्स. Now coming to the types of organism. There are two types of organism, unicellular and multicellular. Let's discuss the unicellular organism. Organism made up of only one cell are called unicellular organism. Example, amoeba, paramecium and bacteria. So जो जीव सिर्फ एक सेल के बने होते हैं उन्हें बोलते हैं यूनी. यूनी मीन्स सिंगल. एग्जाम्पल हो गया आपका अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. Here is an important line. Let us see this.
अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन दिस ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सिंगल सेल ही काफी रहती है सारी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वहीं अगर बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, सो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, यानी कि जो दो से ज्यादा सेल से बने होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मल्टीसेलुलर। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो the example and the definition is clear. Now here is an important point, which is different cell perform different function in multicellular organism. यानी कि यहाँ more than 2 या बहुत सारी सेल्स हैं तो हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, और जबकि यहाँ एक सिंगल सेल सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। ओके, now what is the shape and size of cell? So cell differ in shape and size according to the work they perform, यानी कि हर सेल का जो शेप है वो अलग है, साइज अलग है अकॉर्डिंग टू द वर्क गिवन टू देम, यानी जो उनको काम मिला है उस हिसाब से उनका शेप और साइज है। हर सेल का फंक्शन अलग है, हमें पता है, जैसे कि नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच, मसल सेल्स आर स्प्रिंडल शेप, रेड ब्लड सेल्स आर राउंड एंड फ्लैट। यानी कि इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि हर सेल, जितनी भी बॉडी में हमारी सेल्स है, उनका शेप, साइज और वर्क क्या है, अलग अलग है। अब देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म, यानी कि सबसे छोटी सेल का नाम है माइकोप्लाज्म जो एक बैक्टीरिया है, while the largest cell is the ऑस्ट्रिच एग, यानी कि लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, ऑस्ट्रिच एग को कहा जाता है, इट इज अ लार्जेस्ट सेल, और स्मॉलर सेल माइक्रोप्लाज्म। सो नोट दिस इन योर नोट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चाहे वो यूनिसेल में हो चाहे वो मल्टी सेल में हो। ऐसे क्या 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो सेल के पास होने चाहिए। तो सेल को सेल बोलने के लिए इसके पास 3 मेन कंपोनेंट्स होने चाहिए, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग, साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, एंड द न्यूक्लियस विच इज द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल। तो ये सारे के सारे मेन 3 कंपोनेंट्स हैं जो सेल के पास होने ही होने चाहिए और होते हैं। सम सेल कंटेन अ सेल वॉल एंड अदर ऑर्गेनेली, यानी कि कुछ सेल के पास सेल वॉल्स भी होते हैं और अदर ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, जो हम नेक्स्ट आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दिस सेल मेम्ब्रेन इन डिटेल. Cell membrane is also known as plasma membrane. Both the name are same, so don't get confused. So plasma membrane is the outer covering of cell, you know it. It separates the content of cell from the external environment. It is called selectively permeable membrane. यानी कि जो plasma membrane का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, यानी कि इट ओनली अलाउज सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, यानी कि सेलेक्टिव चीजों को ही वो अपने अंदर या अंदर से बाहर जाने देती है। फंक्शंस देखिए, प्रोटेक्ट द सेल, ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होगा सेल को प्रोटेक्ट करना, मेंटेन द शेप ऑफ शेल एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ अ सेल, यानी कि सब्सटेंस को अंदर और बाहर, कौन कौन सा सब्सटेंस आना है, किसको अंदर से बाहर जाना है, उन सब चीजों को कंट्रोल करने वाली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, now here one question arises that how do the movement of substances occur in the plasma membrane. So here's the topic diffusion and osmosis, which will clear your this question. So first of all, it is diffusion. The movement of substance from region of high concentration to low concentration is called diffusion. यानी कि अगर देखते हैं, अगर सेल को कोई भी पार्टिकल, सेल के अंदर जो पार्टिकल्स की कंटेंट है वो ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है और सेल को वो चीज नहीं चाहिए, तो सेल सिंपली क्या कर देगी, उस ज्यादा कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर को किसी चीज का अमाउंट ज्यादा है तो उसको पास कर देगी सेल से बाहर। यानी कि सेल के अंदर अगर कोई भी कंटेंट का अमाउंट हाई है तो वो हाई से लो की तरफ क्या है, उस कंटेंट को भेज देगी। तो जब ये चीज होती है, ये मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट को बोला जाता है डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ज्यादातर गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि अगर अंदर CO2 का अमाउंट ज्यादा है तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बाहर निकल जाएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो इसमें क्या है, आपका डिफ्यूजन में गैसेस का मूवमेंट है और ऑस्मोसिस में आपका वाटर का मूवमेंट है।
दोनों फिनोमिना सेम है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बस बात आ जाती है वाटर और गैसेस की। ऑस्मोसिस में अगर वाटर का अमाउंट बाहर ज्यादा है तो बाहर से सेल के अंदर क्या है, मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर क्या है, मूवमेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। गॉट इट? So next topic is cell wall. Let us discuss more about cell wall. The cell wall is present only in plant cell. The important point to be noted that animal cell में cell wall नहीं होती है, सिर्फ plant cell में होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि ये क्या है, सेलुलोज की बनी होती है। आप देखेंगे कि सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है एंड लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लांट में, प्लांट की सेल में सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ओके अब इस सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी, यानी कि ये क्या है, हार्श से हार्श इन्वायरमेंट में प्लांट को खड़े रहने के लिए प्रॉपर रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। आपको पता है प्लांट हमेशा आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से उसके शेप साइज और उसकी रिजिडिटी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो उस वो कॉम्प्लिकेशन ना आए इसीलिए प्लांट के पास सेल वॉल होती है। इट प्रोटेक्ट द सेल, यानी कि वो सेल को प्रोटेक्ट करती है ऑब्वियसली, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्स्टिंग, यानी कि क्या है, बर्स्ट होने से प्रिवेंट करती है। तो ये है सेल वॉल के फंक्शंस और सेल वॉल के फीचर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। सो व्हाट इज न्यूक्लियस? वी ऑल नो द central part of cell is called nucleus. It is found in the center of cell and it acts like a control center of cell. यानी कि ये पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है सेल का, यानी कि न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती है देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास खुद की मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, खुद का अंदर का फ्लूइड यानी कि लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे क्रोमेटिन नेट्स। अगर उन क्रोमेटिन नेट्स को हम ओपन करें तो वो क्रोमोसोम का शेप देंगे, यानी कि न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं, आपके क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं डीएनए, और उन डीएनए के अंदर होते हैं जीन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, और आपसे और आपके पेरेंट्स से ये आपको आए हैं, यानी कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो आपके पेरेंट्स से आपको मिली है ये आपसे फिर आपकी आने वाली जनरेशन को जाएगी। यानी कि क्रोमोसोम कंटेन जीन विच कैरी हेरिडिटरी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि हर सेल के न्यूक्लियस के पास अपनी अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस को। फर्स्ट फंक्शन इज इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, इट हेल्प इन सेल डिवीजन एंड इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि न्यूक्लियस ही है जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, इसमें सेल डिवीजन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक आगे आने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें सेल डिवीजन के टॉपिक को क्लियर करने के लिए। इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि उस पर्सन की जेनेटिक मटेरियल, यानी जितने भी जीन, जितने भी इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वो हमारा न्यूक्लियस कंटेन करता है। तो न्यूक्लियस इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल। Now, next comes cytoplasm. It is very easy to understand. The plasma means liquid and cyto means cell. So, cytoplasm is a jelly-like substance present between the nucleus and the cell membrane. यानी कि सेल के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो उन दोनों के बीच में जो आपका जेली लाइक या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इट कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अभी हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेल के जस्ट लाइक हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उसी तरीके से सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन है जिनको ऑर्गन ना कहते हुए ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। ओके, सो हियर आर द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is the site of many chemical reaction.
इट हेल्प्स ऑर्गेनेलीज टू फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन, और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाती हैं साइटोप्लाज्म में। अब चलिए, अब हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे वन बाय वन सेल में प्रेजेंट सारी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड रीड अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज. So our first organelle is endoplasmic reticulum, which is also known as ER in short form. So ER is the network of membrane found in cytoplasm. तो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं सारे साइटोप्लाज्म में मिलने वाले हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि पूरा नेटवर्क सिस्टम है। अब ये क्या है, कितने टाइप का, उसका काम क्या है, चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ ईआर. ईआर दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. टॉकिंग अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज ऑल्सो नोन एज RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जिसका सरफेस क्या है, बहुत ही रफ है। या क्यों रफ है? क्योंकि इसमें क्या है, राइबोसोम अटैच्ड है। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच है उनको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि मेन फंक्शन क्या है RER का, ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन को फॉर्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है. उसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज ऑल्सो नोन एज SER, यानी कि इसकी सरफेस स्मूथ होती है तो इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है तो इट हेल्प्स इन फैट सिंथेसिस, यानी कि SER का काम क्या होता है, ये फैट को बनाने में हेल्प करता है. यानी कि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस RER और फैट सिंथेसिस SER. और पूरे ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम फंक्शन देखें तो वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, यानी कि क्या है, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि ये नेटवर्क है, पूरे सेल के अंदर आपका नेटवर्क सिस्टम बना के रखता है और इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का और फॉर्मेशन का प्रोटीन एंड फैट्स. ओके, सो नाउ अवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स के बारे में हमें पहले से ही बहुत कुछ पता है. राइबोसोम्स आर टाइनी स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू RER, यानी कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, टाइनी स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मूव कर रहे हैं और RER के साथ अटैच भी हैं. दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, तो आप बोलेंगे राइबोसोम्स, बिकॉज दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. इनको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर को प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज विच इज गोल्जी एपरेटस. सो द गोल्जी एपरेटस वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, यानी कि कैमिलो गोल्जी पे ही उनका नाम, एक ऑर्गेनेल का नाम दिया गया जो है गोल्जी एपरेटस, या इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी. तो इसका फंक्शन और फीचर्स देखते हैं. सो द गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस इज अ सेल ऑर्गेनेल दैट एक्ट एज अ सेल पोस्ट ऑफिस. सो दिस important points you have to note this. Which cell organelle is known as post office, यानी कि किस सेल ऑर्गेनेल को पोस्ट ऑफिस का टैग दिया गया है, तो आप बोलेंगे कि गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ अ सेल. और व्हाई इट इज नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ अ सेल, because it receives protein and lipids from the endoplasmic reticulum, modify them, pack them to vesicles for delivery to specific location inside or outside the cell. यानी कि जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है, जो राइबोसोम्स यानी कि RER ने जो क्या बनाया, आपका प्रोटीन बनाया, और SER ने जो आपका फैट यानी लिपिड्स का फॉर्मेशन किया, उसको ये क्या करती हैं, मॉडिफाई करती हैं, अपनी बॉडी में पैकेज करती हैं, यानी कि पैक करती हैं, जो भी टारगेट साइट है वहां तक पहुंचाने के लिए वेसाइकल्स के फॉर्म में इसको डिलीवर करती हैं आउटसाइड और इनसाइड द सेल. तो इसका काम कैसा है, एक डिलीवरी बॉय या एक पोस्ट ऑफिस की तरह है कि ये चिट्ठी को पहले क्या करती है, जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, चिट्ठी देते हैं, चिट्ठी को प्रॉपरली स्टैंप लगाते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस का स्टैंप है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, पोस्टमैन उसको जहां पहुंचानी है वहां तक पहुंचाता है. तो गोल्जी बॉडी का काम भी क्या है, एक पोस्ट ऑफिसर की तरह ही है. तो इसीलिए क्या है, गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस. तो इसका मेन सिंपल काम क्या है,
प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करना, पैक करना और डिलीवर करना, जो भी लोकेशन दे रखी है स्पेसिफिक लोकेशन में। ओके, गॉट इट। सो हियर आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी: पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, सिक्रेशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। सो फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया है पैकेजिंग और स्टोरेज का। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है आपका गोल्जी बॉडी का कि गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स को फॉर्म करती है, और लाइसोसोम हमारा चौथा सेल ऑर्गेनेली है, यानी कि अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है आपका लाइसोसोम्स। So talking about the lysosome are sac-like structure filled with digestive enzymes। यानी कि लाइसोसोम क्या होते हैं? एक sac-like structure होते हैं जो digestive enzyme से भरे हुए होते हैं। They are called suicide bag। अब देखिए एक और न्यू नेम, यानी कि लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? They are also known as suicidal bag। अब suicidal bag क्यों कहा जाता है? Because they can digest their own cell when damaged। यानी कि इसके पास पोटेंशियल है कि अगर कोई भी सेल खराब हो जाती है तो वो अपनी सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। आइए देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। डाइजेशन ऑफ फूड, डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल, रिमूव वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज। यानी कि अगर सेल के अंदर कोई भी वॉर्न आउट चीजें ऑर्गेनेली है, यानी खराब ऑर्गेनेली है, वो उसको रिमूव कर देगा। और फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि सेल से बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी लाइसोसोम रखता है। और इवन अगर पूरी सेल डैमेज हो जाती है तो वो उसको क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। Now coming to our next organelle, which is mitochondria। So mitochondria are also known as powerhouse of a cell। यानी कि इनको भी क्या बोला जाता है? इनका एक नेम है जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ अ सेल। यानी कि पूरी सेल को पावर प्रोवाइड करेगी माइटोकॉन्ड्रिया। दे रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी कि क्या है? रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारा डाइजेस्टिव मटेरियल था, जो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हमें खाने से मिला, तो जो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है एनर्जी में। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो क्या है? इट प्रोड्यूस एनर्जी एंड हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि हर सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया करवा रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल क्यों कहा जाता है? तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका जो ग्लूकोज है वो टूट के क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी एनर्जी से हम डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली विच इज प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। यानी कि प्लास्टिड्स क्या है? सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो चलिए जानते हैं प्लास्टिड्स के बारे में और अच्छे से। सो plastids are only present in plant cell, we know that। Now talking about the types of plastids। So first type is chloroplast, second is chromo, and third is leuco। So talking about chloroplast, it contains chlorophyll and help in photosynthesis। यानी कि chloroplast क्या contain करता है? chlorophyll contain करता है और photosynthesis की process में help करता है। photosynthesis is a process by which plant make their own food with the help of sunlight and chlorophyll। Okay, so next type of plastid come chromoplast। It provide different colors to fruit and flowers। यानी कि प्लांट के फ्रूट और फ्लावर्स का जो अलग अलग कलर है वो कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। देन कम्स ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट? इट स्टोर फूड मटेरियल लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का जो काम है वो स्टोरेज का है। यानी कि प्लांट्स में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ओके,
So now coming to our next cell organelle, which is the last cell organelle of this chapter, which is vacuole. Vacuole are the storage sac present in cell, यानी कि storage material की तरह काम करने वाले हमारे vacuole cell में present रहते हैं. जितना भी extra storage होता है वो vacuole अपने अंदर store करते हैं. Plant cell have one large vacuole while animal cell have small vacuoles. यानी कि जो एनिमल सेल है उसका जो वैक्यूल का साइज है वो स्मॉल होता है और छोटे छोटे एक दो हो सकते हैं, और जबकि जो प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल का साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है और नंबर सिर्फ 1 होता है, यानी कि हाफ ऑफ द सेल इज फिल्ड विथ वैक्यूल. तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर को डिजाइन किया है, ये वैक्यूल का साइज प्लांट में बहुत ज्यादा बड़ा है और न्यूक्लियस क्या है साइड में प्रेजेंट है, और यहीं पर को न्यूक्लियस मिडिल में प्रेजेंट है और वैक्यूल का साइज बहुत ही स्मॉल है. तो चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ वैक्यूल. सबसे पहला फंक्शन है स्टोर द फूड एंड वाटर, यानी कि वैक्यूल क्या स्टोर करता है अपने अंदर फूड एंड वाटर. स्टोर द वेस्ट मटेरियल, समटाइम क्या है ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है. मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट सेल, यानी कि ये क्या है प्लांट सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज. आई नो दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी बट आई हैव मेड सो शॉर्ट एंड सो सिंपल नोट्स फॉर यू ऑल. सो आगे वाले टॉपिक में हम बात करेंगे सेल डिवीजन की. तो ये चैप्टर बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा आपका, तो इस चैप्टर को लास्ट तक जरूर देखें. तो अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. अब बेस्ड ऑन द सेल ऑर्गेनेली जितनी हमने स्टडी कर ली है उसके बेसिस पे हम प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंस कर सकते हैं. जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. प्लास्टिड की बात करें तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल में 1 और लार्ज वैक्यूल होती है, जबकि स्मॉल और मैनी वैक्यूल्स एनिमल सेल में होती है. प्लांट सेल का जो शेप और साइज है वो फिक्स्ड रहता है, जबकि एनिमल सेल का शेप और साइज इरेगुलर रहता है. तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. ओके, सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. So here we will discuss about the prokaryotic and eukaryotic cells. So what are prokaryotic cell? Pro means not fully developed and karyotic means nucleus. तो ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता है उन्हें बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल. इट मीन्स नो ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि जिनके न्यूक्लियस का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है वो ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और उन सेल्स को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स. इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल है बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स. नेक्स्ट कम्स यूकैरियोटिक सेल. सो इन दिस यू मीन्स डेवलप्ड एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस फुली डेवलप्ड रहता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से डेवलप होता है, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल. इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और प्लांट और एनिमल्स क्या हैं यूकैरियोट्स हैं, यानी कि हम किस कैटेगरी में आए यूकैरियोटिक की सेल की कैटेगरी में आए, और हम लोगों का जो न्यूक्लियस है वो फुली डेवलप्ड. Okay, so we are multicellular and we are eukaryotic organism. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है they are, some of them are unicellular and they are prokaryotic organisms. Okay, some of them like bacteria they are prokaryotic organism. So note this down in your notebook. This was the topic of prokaryotic and eukaryotic organism. Okay, so now coming to next topic, which is cell division and which is the last topic of this chapter. This was the whole one shot video. Hope you are enjoying this video. In this video we have covered all the topics of this chapter. Now what is cell division? Cell division is a biological process where single parent cell duplicates its content and split to form two or more new cell called daughter cell. यानी कि जब सेल डिवाइड करती है और उस सेल से डिवाइड करने के बाद न्यू सेल का फॉर्म होता है और न्यू सेल को डॉटर सेल कहा जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन. So now why cell division is important? It is important for growth, for reproduction, for healing of wounds. There are two type of cell division. So primarily two type of cell division take place. Number one is mitosis and number two is meiosis. Let us talk about the mitosis. It creates exact genetic copies of cell. यानी कि ये क्या है
सेम यानी कि अपनी पेरेंट सेल और जो डॉटर सेल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, ट्विन्स होंगे, कॉपीज होंगे एक दूसरे के माइटोसिस की प्रोसेस में। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग, रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू एंड रिप्लेसिंग वॉर्न आउट सेल। यानी कि ये माइटोसिस की प्रोसेस कब होती है, हम छोटे बच्चे थे, फिर हम बड़े हुए, यानी कि हमारी हाइट बढ़ी, हमारी मसल ग्रो हुई, तो ये सारी की सारी ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन के कौन से पार्ट में हुई, माइटोसिस के टाइप में हुई। यानी कि ग्रोइंग, रिपेयरिंग, ये सारी चीजें क्या है, माइटोसिस के कारण हमारी बॉडी क्या कर पा रही है, ग्रो कर पा रही है, टिश्यूज ग्रो हो रहे हैं, और जो वॉर्न आउट सेल है यानी डेड सेल्स हैं उसकी जगह रिप्लेसमेंट में न्यू सेल्स बन रही हैं। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, माइटोसिस करता है। जबकि दूसरा टाइप है मियोसिस। मियोसिस क्या करता है, मियोसिस प्रोड्यूस यूनिक रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पर्म एंड एग। It the half of the genetic information so that when fertilization occur the offspring has a correct number of chromosome। यानी कि मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होती है, यानी कि आपके स्पर्म और एग में जो डिवीजन होगा वो हाफ हाफ होगा। यानी कि एग के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और स्पर्म के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ताकि जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो तो उसके बाद वो हाफ और हाफ मिलके फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन पाए और एक करेक्ट पेयरिंग हो पाए। तो मियोसिस हमेशा रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है और माइटोसिस आपकी बॉडी पार्ट में होती है, यानी कि जो आपकी बॉडी पार्ट ग्रो हो रहे हैं उसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो इस क्लास में आप मियोसिस और माइटोसिस की सिर्फ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो हियर कम्स आवर सब टॉपिक ऑफ सेल डिवीजन विच इज ट्यूमर। सो व्हाट इज ट्यूमर, लेट अस अंडरस्टैंड। A tumor is an uncontrollable growth of cell in the body caused by continuous cell division। यानी कि लगातार सेल डिवीजन होने के कारण जो सेल का नंबर होता है वो अनकंट्रोल वे से इंक्रीज होता है, तो उस फिनोमिनन को हम कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं। बेनगाइन ट्यूमर क्या है आपका, डज नॉट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट, यानी कि ये क्या है आपका अदर बॉडी पार्ट में फैलता नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, स्प्रेड टू अदर पार्ट एंड कॉज कैंसर। यानी कि दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक होता है जो एक बॉडी पार्ट, यानी कि अगर आपके कोई भी बॉडी पार्ट, किसी के कोई भी बॉडी पार्ट में हो रहा है तो वो स्प्रेड नहीं करेगा, फैलेगा नहीं। और मैलिग्नेंट है जो आपके किसी बॉडी पार्ट में हो रहा है तो इजीली दूसरे बॉडी पार्ट में या दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में होने की संभावना हो सकती है। तो ट्यूमर के दो टाइप होते हैं। अब इसी के बेसिस पे एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक टॉपिक आता है। सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी इन विच नॉर्मल सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ नियर बाय सेल। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सेल है वो, ये एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें जो नॉर्मल सेल है वो डिवाइड हो रही है और बगल वाली सेल क्या है, अगर खाली है तो वो जगह भर जा रही है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर ये इस एबिलिटी को लॉस कर देती है, यानी कि दिस प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ सेल। यानी कि इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग नहीं होती है सेल में, यानी कि अगर जो स्पेस खाली है उसको भर रहा है, दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बट अगर ये एबिलिटी सेल अपनी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की एबिलिटी को खो देता है तो उस कारण क्या है, आपका अनकंट्रोल्ड वे से क्या है, सेल डिवीजन होते रहता है विच कॉजेज ट्यूमर और कैंसर। यानी कि बट इफ सेल लूजेस दिस एबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दे ग्रो आउट of control, causes tumor and cancer. Cancer cell lose contact inhibition and continue dividing uncontrollably। यानी कि contact inhibition एक natural process है जिससे सेल क्या है, प्रॉपरली आपकी डिवाइड करेगी। बट अगर ये अपनी एबिलिटी लॉस कर देती है तो अनकंट्रोल वे से क्या है, सेल डिवाइड करते जाती है और जो कॉज होता है आपका ट्यूमर और कैंसर का। ओके, गॉट दिस टॉपिक? So learners, this was the one short video. We have covered chapter number 1 of bio, which is cell. In this topic, we have covered all the subtopics. So hope you like this video. Hope you find this video informative. If you like this video informative, like, share, comment and subscribe for more such classes. Thank you for watching. Take care. See you in next class. Goodbye.